Please come to problem number 8. Problem number 8 पे आ जाए. Prepare consolidated trading account and department trading account for the year ending 31/12/95. Consolidated trading account. Consolidated मतलब दो कॉलम करके एक टोटल बनाना पड़ेगा. मतलब से डिपार्टमेंट ट्रेडिंग पे आ गया और टोटल मतलब कंसोलिडेशन पे हो गया. For the year ending 31/12/95. Opening stock 20,000, 12,000. Sales 1,40,000, 1,12,000. Closing stock. Purchase goods 4,000, 500, 6,000. Finished goods 24,000 and 14,000. So closing stock दो अलग अलग है, purchase goods and finished goods. Then purchase goods transferred by A to B 8,000 and by B to A 10,000. Carriages 2,000, 2,000. Purchases 92,000, 68,000. Wages 12,000, 8,000. Finished goods transfer. Finished goods transferred by A to B 35,000, by B to A 40,000. And return of finished goods by A to B 10,000, by B to A 7,000. Purchase goods have been transferred mutually at their respective departmental purchase cost, and finished goods at departmental market price, and that 20% of finished stock closing at the each department represented finished goods received from other department. ये 96 को आया हुआ क्वेश्चन है 12 96 करें हम लोग यहाँ पर. It is as it is है. मैंने तो ऐसे ही पूछा करे क्या करे. एक्सपेक्टिंग कि आप कहेंगे होंगे तो है नहीं कुछ इसके अंदर. आप देखें तो आई थिंक ऑल द फिगर्स आर 2-3 टाइम ही ऐसे बिल्कुल एज इट इज प्रॉब्लम ओनली चेंज इन फिगर. सो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम हमको अभी जो हमने सॉल्व किया वो था नवंबर 14 का था 8 माह का, और यही 96 में आया हुआ प्रॉब्लम था 12 में. बिल्कुल एज इट इज सेम टू सेम प्रॉब्लम विद चेंज इन फिगर रिपीट होती है. सो हाँ बोलो. हाँ ठीक. सो हियर सो 7 से लेकर 19 हमारा सब हो गया. 3 से लेकर 19 तक हो गया ना हमारा. कौन सा 12 रह गया. फिर कर लेते हैं नंबर 12. Now please come to point number 12. Number 12. The following balances were extracted from the books of A. You are required to prepare the departmental trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2001 after adjusting the unrealized profits if any. If any वगैरह कुछ नहीं है, profit है जो उसके अंदर. Department X and Department Y. Opening stock 50,000, 40,000. Purchases 6,50,000, 9,10,000. Sales 10 lakh and 15. The following information is provided. General expenses incurred for both the department were 1,25,000. दोनों को मिलाकर. Closing stock at Department X rupees 1 lakh, including goods from Department Y for rupees 20,000 at cost to Department X. बड़ा सीधा सीधा दे दिया आपको. Closing stock of Department X rupees 1 lakh, including goods from Department Y for rupees 20,000 at cost to Department X. मतलब डिपार्टमेंट X के पास टोटल क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख का है, जिसके अंदर 20,000 का स्टॉक Y से आया हुआ है एट कॉस्ट टू X, मतलब सेलिंग प्राइस टू Y. Then closing stock at Department Y rupees 2 lakh, including goods from Department X rupees 30,000 at cost to Department Y. तो डिपार्टमेंट Y का क्लोजिंग स्टॉक 2 लाख, उसके अंदर X से आया हुआ 30,000 एट कॉस्ट टू डिपार्टमेंट Y. डिपार्टमेंट Y के लिए कॉस्ट मतलब X के लिए सेलिंग प्राइस. Opening stock of Department X and Y include goods of the value 10,000 and 15,000 respectively, taken from Department Y and Department X respectively at cost to transferee department. Even opening stock जो है X and Y के पास, उसके अंदर जो other department का stock है, that includes 10 and 15,000. The gross profit is
uniform from year to year. GP is uniform from year to year, मतलब क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक में जो अदर डिपार्टमेंट का स्टॉक है उसके ऊपर सेम जीपी आपको अप्लाई करना है। देखो ओपनिंग स्टॉक दिया है, परचेज दिया है, सेल्स दिया है, नीचे क्लोजिंग स्टॉक दिया है। यू कैन प्रिपेयर द डिपार्टमेंटल ट्रेडिंग अकाउंट, यू कैन गेट द जीपी रेशियो, विल गेट द जीपी, फाइंड आउट द जीपी रेशियो एंड डू इट। इंटर डिपार्टमेंटल ट्रांसफर में इससे सस्ता और कुछ नहीं हो सकता। और ध्यान रहे आपको कॉमन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, सो व्हाट आई विल सजेस्ट, हैव योर ट्रेडिंग अकाउंट एंड हैव द जनरल पीएनएल और कॉल इट एज ए पीएनएल एडजस्टमेंट। ठीक है, कॉमन एक्सपेंसेस आप उस पीएनएल में लेंगे और वहीं पर आपका स्टॉक रिजर्व एडजस्ट होगा। डू इट ऑन योर ओन।
So for this number 12, जरा बताओ क्या क्या आंसर आपके? What is the GP ratio? GP ratio डिपार्टमेंट X and Y. X का कितना आया? 40% and Y का 50%. Then stock reserve. X के पास जो स्टॉक है, closing stock, it was stock reserve on your opening stock. Opening stock. तो X के पास जो स्टॉक था, it was 50,000. उसमें Y से आया हुआ कितना है? 10,000. So उस 10,000 का 50% का मतलब 5,000. और Y के पास जो स्टॉक था, it was 40,000. उसमें X से आया हुआ कितना था? 15,000. उस 15,000 का 40% 6,000. Then closing stock. Closing stock. X के पास जो closing stock है 1,00,000. उसमें से Y से आया हुआ कितना है? 20,000. उस 20,000 का is 10,000. और जो Y के पास स्टॉक था 2,00,000. उसमें X से आया हुआ था 30,000. और उसके लिए X का परसेंट लगेगा 40% is 12,000. तो कुल मिला के आपका ओपनिंग का स्टॉक रिजर्व 11,000 एंड क्लोजिंग का 22. ये जो ओपनिंग का है ये आपके P&L के क्रेडिट में आया होगा. बाय स्टॉक रिजर्व 11,000 और डेबिट में आया होगा टू स्टॉक रिजर्व 22,000. ठीक है. जीपी कितने का बताएंगे सर आप मुझको? जीपी एक का कितना है आपका? 4 लाख. वाई का 7,50,000. फिर ये जीपी आपने प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर किए, वहां पर कॉमन एक्सपेंसेस दिए, स्टॉक रिजर्व की एडजस्टमेंट की. सो फाइनल नेट प्रॉफिट 10,14,000. Is it? So this is what the answer for number